Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, good morning, Urdu Dorkot Toysarni. Welcome to Zara initiative of Urdu Dorkot Stay Healthy, Stay Healthy, Stay Fine. We thank you very much for being part of this wellness initiative. Today, my co-host is Pankaj Kachru. Uh, the topic of today is substance abuse by young adults, roles of parents and teacher, and very important topic in these modern times with changing times. Dear friends, this entire Urdu Dorkot Stay Healthy, Stay Fine series is part of Mata Shri Mata Roop Bhavani 4th centenary celebrations. We welcome Dr. Muzaffar. Pankaj, over to you. Thank you, Amiji. Welcome, friends. Today we talk about very sensitive subject, as Amit said, the substance abuse in young adults and role of parents and teachers. So, substance abuse in young generation has been rising all over the world, and India is no exception to it. This impacts negatively on the academics, social, psychological, economical, and sociological development of the people using drugs as well as their families. Drug use among the youth is known to be influenced by the education, peer pressure, curiosity, or urge to experiment, and the availability of the drugs and the substance. The exposure to injecting drug users to get infected with HIV and AIDS due to the sharing of the needles and syringes, risk sexual behavior make the problem of the drug use more serious. So I'll go through some of the statistics or the reports that was published by Government of India in 2019 after taking some of the after reaching out to all the states in fact and collecting the data. So the report shared almost 2.6 crore people in India have used or use opioid. So opioid is nothing but heroin, you must be knowing, or morphine. So more than 60 lakh people in India suffer from opioid use disorders. And heroin and pharmaceutical opiates are the commonly used drugs. Sedatives and inhalants are another section, which 1.8, 1.18 crore people are addicted. Almost 4.6 lakh children. So 4.6 lakh children and 18 lakh adults need a help as a result of inherent use. The prevalence of this use is high in children and adolescent, and that's the motive exactly. The injected drugs, injected drugs, 8.5 lakh people inject drugs into themselves and are addicted, which make their life more risky towards catching other diseases like HIV and AIDS. Alcohol is one of the another subjects which India is tackling. So almost 16 crore people use alcohol. So maybe desi or the foreign made liquor. So nearly 6 crore people suffer or need the help because of harmful or dependent alcohol use. That is one in every 3 alcohol users. So friends, as we go into this session, we would like you to have your all viewers' attention on this today's program as we invite Dr. Mohammad Muzaffar Khan Saab from Srinagar. He is a consultant clinic psychologist. He'll help us to understand the problem in depth and help motivate young adults, as they say, choose to live free from addiction. Dr. Mohammad Muzaffar Saab is presently Director Youth Development and Rehabilitation Center, Srinagar. He is a founding member of Police Drug De-Addiction Services, an empaneled expert in Government of India through Higher Education Department of Rehabilitation of Youth, life member of Indian Association of Clinical Psychologists, licensed practitioner by Rehabilitation Council of India,
state coordinator for MHGAP Kashmir. So MHGAP is Mental Health Gap, the program which was initiated by Royal College of Psychiatrists London in collaboration with J&K Health Service supported by WHO and J&K Police. Currently, Dr. Saab is also supervising a mental health program under the name called Healthy Minds, which is an initiative by Kashmir, a US-based organization. So I welcome Dr. Saab to discuss on this subject, help us understand the issue and the things that we need to, or the parents need to, or the teachers need to take care. Over to you, Dr. Saab. Thank you. Thank you, Kachru Saab. Thank you, Amit ji. And I'm highly thankful for inviting me, providing me this opportunity to interact with so many people. And I will try my best to transfer my learnings with the intention, with a genuine desire to help the parents, to help the teachers, so that they are able to identify the things at an early stage, and we are able to make a drug-free India, and we are able to keep our youth away from this menace, because this I have seen practically on ground, that this makes the youth most unproductive lot for any community or society. And if we have to move forward, we have to definitely ensure that our youth does not go to it. So practically, I'm working in Kashmir for last 11 years in the drug abuse field through J&K Police. And it was an initiative which was taken in 2008. And from a single room, now it has reached to a level where it is coming up in an institutional way. And the name, earlier we had this Police Drug De-Addiction Center, but now the name has been changed as Youth Development and Rehabilitation Center, currently located at Srinagar. And yes, I want to put it on record that the department, the organization has really built this institution, developed this institution to the level that, number one, that it has unparalleled infrastructure across whole north of India. Second, it has the highly qualified staff, qualified, competent, and highly involved staff working with it. And the third thing, which is very important, that this is the most preferred treatment center among whole Kashmiri population, not only limiting to Kashmir, but to the whole Jammu and Pir Panchal region. Now, I believe when we talk about drug abuse, जब भी हम ड्रग अब्यूज की बात करें, और मोर प्रैक्टिकली सब्सटेंस अब्यूज की बात करें, ये सब्सटेंस अब्यूज क्या है, इसकी डेफिनेशन अक्रॉस वर्ल्ड, अक्रॉस पैन इंडिया चेंज नहीं होती है. वो इट इज द सेम, द ड्रग इज सेम, द इम्पैक्ट इज सेम, एंड द पेरेंट्स आर सेम, द चिल्ड्रन आर सेम, द टीचर्स आर सेम. So it makes a relevance that whatever experiences I have in this part of the world, I will try to share these experiences to the parents, to the teachers, to this whole worthy audience who are witnessing us through the Facebook and other mediums, so that we are able to contribute. Now, Amit ji and his team, they shared the data. The data is the most recent data, जो 2019 में एक सर्वे हुआ था through AIMS, and the picture is very grim. और उसमें भी अगर आप देखेंगे, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जो हमारा पंजाब है और J&K, उसमें तेजी से बहुत आगे बढ़ रहा है. Now, मैं डेटा की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, देन शेयरिंग सम ग्राउंड रियलिटीज एंड ग्राउंड एक्सपीरियंसेस विच विल हेल्प. हमने सब्सटेंस अब्यूज की बात की. सबसे पहले हम लोग किस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं?
एज अ पेरेंट सबस्टेंस हम लोग, हमारे बच्चे खाना भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं, चॉकलेट भी खाते हैं, फ्रूट भी खाते हैं, हर चीज़ खाते हैं, दे आल्सो क्वालिफाई फॉर ए सबस्टेंस। लेकिन हम किस सबस्टेंस की बात कर रहे हैं? लेट्स मेक इट क्लियर। हम उस सबस्टेंस की बात कर रहे हैं जिसके अंदर साइको एक्टिव प्रॉपर्टी होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आई मीन बाय साइको एक्टिव प्रॉपर्टी इज कि जब भी इस सबस्टेंस को हम लेते हैं, चाहे हम इसको खाएंगे, चाहे हम इसको सूंघेंगे, चाहे हम इसको इंजेक्ट करेंगे, ये हमारे जिस्म के अंदर जैसे ही दाखिल हो जाता है, इट अल्टर्स आवर मेंटल फंक्शनिंग। यहां मैं क्लियर करना चाहता हूं, आई एम यूजिंग द टर्म डेलिबरेटली, अल्टर्स आवर मेंटल फंक्शनिंग। दैट मीन्स कुछ सबस्टेंसेस, या लेमैन में जिसको हम बोलते हैं कुछ ड्रग्स, हमारे मेंटल फंक्शनिंग को बढ़ा देते हैं, कुछ सबस्टेंसेस हमारी मेंटल फंक्शनिंग को कम कर देते हैं, और कुछ सबस्टेंसेस एक डोज पर एक तरह का फंक्शन करते हैं, और डोज बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो दूसरा तरह का फंक्शन करेंगे। सो वी से दे हैव ड्यूअल मोड ऑफ एक्शन। नाउ इस सबस्टेंस की जब हम बात करेंगे कि इसके अंदर साइको एक्टिव प्रॉपर्टी होता है और कौन है वो सबस्टेंसेस, और जब हम ये डेफिनेशन अपने ध्यान में रखेंगे तो हमारे जितने भी डे टू डे हेल्दी फूड्स है वो सारे एक्सक्लूड हो जाते हैं। अब इस साइको एक्टिव सबस्टेंस की जब हम बात करें, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली जो मैंने खुद देखा, कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में देखा, आई हैव बीन वर्किंग इन दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में देखा, आई वाज वर्किंग इन हिसार हरियाणा, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो देखा, आई हैड बीन ट्रेन्ड इन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाट्री रांची झारखंड, उधर के उस कॉन्टेक्स्ट में देखा, बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में, वेस्ट बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में, जब हम पूरे अक्रॉस इंडिया पर नजर घुमाते हैं तो जो कॉमनली सबस्टेंसेस है जिनके अंदर ये साइको एक्टिव प्रॉपर्टी है, नंबर 1 कैनबिस एंड इट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स। चाहे उसमें हम बांग की बात करें, चाहे हम उसमें चरस की बात करें, चाहे उसमें हशीश की बात करें, चाहे हम marijuana की बात करें, या चाहे अक्सर बच्चे आजकल बोल रहे हैं मैं क्या पी रहा हूँ जी, मैं तो जॉइंट पी रहा हूँ। वो जॉइंट क्या है? वो एक सिगरेट है, और उस सिगरेट के अंदर वो हशीश का ही, इसी कैनबिस का जो प्रोडक्ट बीच में डाल देंगे तो दे कॉल इट कि मैं जॉइंट पी रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे, एक फैशन सा बन गया, आप क्या ले, कोई नशा तो नहीं कर रहे? नहीं सर, मैं नशा तो नहीं करता, मैं सिर्फ वीड लेता हूँ। तो ये वीड की बात करें, जॉइंट की बात करें, कैनबिस ऑयल की बात करें, हशीश ऑयल की बात करें, दीज आर ऑल प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू द बाय प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू द कैनबिस। और यहां पर लेमैन की लैंग्वेज में हम लोग चरस गांजे की बात करेंगे। सेकंड जो हमारा कॉमनली सबस्टेंस जिसके अंदर साइको एक्टिव प्रॉपर्टी है, जिनको हम बोलते हैं ओपियोइड्स। वन ओपियोइड इज, जैसे अभी काचरू साहब बोल रहे थे, मेडिसिनल ओपियोइड। मेडिसिनल ओपियोइड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में जब 2008 में हम लोगों ने सर्विस शुरू की, हमारा प्रिडोमिनेंटली बच्चों के अंदर मेडिसिनल ओपियोइड्स होता था, जैसे जिसमें हमारे कफ सिरप्स है कोडीन फॉस्फेट, जिसमें हमारे पेन किलर्स है स्पाज्मोप्रॉक्सवान कैप्सूल्स, जिसके अंदर हमारे अनदर सेट ऑफ पेन किलर्स है जैसे टिपेंडोल जिसके अंदर होता है, या ट्रामाडोल टैबलेट्स जिसके अंदर होता है। अदरवाइज अ वेरी यूजफुल बेनिफिशियल मेडिसिन, जब आपकी कोई पेन कंट्रोल नहीं होती है, स्पाज्मोप्रॉक्सवान इज अ ड्रग ऑफ चॉइस विद गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स। ट्रामाडोल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस जब आपको दांत का दर्द हो या किसी तरह का इस तरह का तकलीफ हो, तो जो किसी और पेन किलर से रिलीव नहीं होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम इनका मिसयूज करेंगे, दे माइट बी मोर हार्मफुल एंड दे टेक अ शेप और रीच अ लेवल जहां हम बोलेंगे दिस कैन बी अ मेडिसिनल ओपियोइड अब्यूज। नाउ रिसेंटली अगेन कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में जब मैं बात करूंगा, 2008 to 2016
अगर मैं 100 पेशेंट देखता था, 80 पेशेंट्स के अंदर मेडिसिनल ओपियोइड्स का प्रिडोमिनेंट अब्यूज रहता था along with cannabis and its products. लेकिन पिछले 2 साल में, पिछले 2.5 साल में we are seeing a total paradigm shift. We are seeing a total shift in the predominant use of abuse of the substances, and now it is heroin replacing all medicinal opioids. And when we talk about heroin, we are saying it is 100 times more deadlier than the medicinal opioids in its all aspects. In the aspect related to इसके अंदर dependence बहुत जल्दी हो जाता है. In the aspect इसके अंदर severity of the dependence बहुत ज़्यादा हो जाती है. In the aspect कि इसका cost बहुत ज़्यादा, per day cost बहुत ज़्यादा है, जो ये बच्चा या जो ये बंदा नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है और जिसको maintain करने के लिए he or she has to go with anything which is illegal to just support his day-to-day costs. Then fourth जो aspect है, across India phenomena develop हो रहा है, that is the inhalant use. जैसे अभी सर बता रहे थे, inhalant use की जब हम बात करेंगे, कॉमनली मैं कोशिश कर रहा हूं वो कॉमन लैंग्वेज यूज करने की, ताकि हमारे जितने भी ऑडियंस है दे फील वेरी फ्रेंडली, दे फील वेरी कंफर्टेबल इन गेटिंग इट, अंडरस्टैंडिंग इट, इन कॉन्सेप्शलाइजिंग इट. जब भी मैं इनहेलेंट्स की बात कर रहा हूं, इसके अंदर आप फेविकोल एसआर को भी गिन लीजिए, आप करेक्शन फ्लूइड जो वो जिनको मिटाउनु बोलते हैं उसको गिन लीजिए, पेट्रोल को भी इसमें ले लीजिए, पॉलिश को भी ले लीजिए, थिनर को भी ले लीजिए, और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इन सब के अंदर एक ही चीज है जो कॉमन है, दैट इज द परसेंटेज ऑफ टॉलिन इन इट. यही एक कंपाउंड है, यही एक एलिमेंट है, यही एक कॉन्स्टिट्यूएंट है जो इन सब इनहेलेंट्स के अंदर है और जो इसको एडिक्टिव पोटेंशियल का लेवल पर पहुंचा देता है, और जो जिसकी वजह से बच्चे इसका अब्यूज करने लगे हैं. और ये देखा गया है कि इसका जो अब्यूज है यंग पॉपुलेशन में, अक्रॉस इंडिया जो यंग पॉपुलेशन है उनके अंदर इसका अब्यूज बढ़ने लगा है, और उसकी जो वो उसका जो वो ग्राफ है दैट इज शोइंग एन इंक्रीजिंग एंड डिस्टर्बिंग ट्रेंड. नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू करेक्ट इट, why it is important कि इसको हम स्टॉप करें, why it is important कि हम अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट. हमारे घरों में काम जो होता है, वुड का काम होता है, वार्डरोब्स का काम होता है, फेविकोल एसआर के बगैर वो काम अधूरा है. लेकिन अगर एज ए पेरेंट मेरे अंदर ये सेंसिटिविटी नहीं है कि इस फेविकोल एसआर का जो मेरे बच्चे 4 घर में है वो इसका अब्यूज कर सकते हैं, तो शायद उस पेरेंट को जब पता चल जाता है तब काफी लेट हुआ होता है. इस फेविकोल एसआर में जो ये टॉलिन है ये क्यों हमारे लिए डिफिकल्ट है, डेंजरस है, क्योंकि जब भी कोई बच्चा मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूं जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ये शेयर करें, लेट्स टॉक अबाउट इट, कि इन इनहेलेंट्स में एक कंपाउंड होता है जिसको हम टॉलिन बोलते हैं, और जैसे ही हम इसको इनहेल करते हैं, जैसे ही हमने इसको नॉर्मली मैं बताऊंगा किस तरह से बच्चे इसको इनहेल करते हैं, वो पॉलीथीन में डाल के कमरे में बंद बैठ के नाक उसमें घुसा के सूंघना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये एक वोलेटाइल सब्सटेंस है और ये उठ जाता है. नाउ जैसे ही ये लंग्स के अंदर चला जाता है, लंग्स के थ्रू ये जो टॉलिन इसके अंदर है वो ब्लड के साथ गैस एक्सचेंज में चला जाता है, और ये हमारे पोटेशियम आयन का डिप्लीशन करता है, और उस वक्त जो बॉडी की एक कैफियत रहती है उसको हम बोलते हैं, मेडिकली हम बोलते हैं कि द पर्सन हैज गॉन इनटू हाइपोकैलेमिया स्टेट. इसके ब्लड के अंदर जो पोटेशियम आयन की जो लेवल रहनी चाहिए वो कम हो जाती है. उससे क्या होता है, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और ये फिनोमेना 15 मिनट आधा घंटा ही टोटल रहता है, लेकिन इस आधे घंटे में जान जा सकती है, इस आधे घंटे में किसी की जान जा सकती है.
इस बंदे की भी जान जा सकती है, ये किसी और की भी जान ले सकता है। वो मैं एक मैकेनिज्म पेश करना चाहूंगा। नंबर वन, जैसे ही टॉलिन हाइपोकैलिमिया स्टेट में ये चला गया, इस बंदे के अंदर एक फिनोमेना हो जाए, उसको हम बोलते हैं असेंडिंग पैरालिसिस। सबसे पहले इसको पैर इसके काम करना बंद कर देते या कम कर देते। और अक्सर हमने देखा कि ये बच्चे कॉलेज से निकल गए, टॉलिन का अब्यूज किया, इनहेलेंट का अब्यूज किया, उसके बाद स्कूटी निकाली, रोड पर आ गए ये डेंजर को परसीव करते हैं बिकॉज दे आर वेरी कॉन्शियस। इनको स्कूटी रोकना होता है लेकिन पैर काम नहीं करता है, ब्रेक नहीं लगती है। बाइक रोकना है लेकिन ब्रेक नहीं लगती है, गाड़ी रोकना है ब्रेक नहीं लगती है। और ये मोमेंट्री फिनोमेना है, और उसमें या तो इनको खुद का नुकसान हो जाता है या किसी को चोट पहुंचा देते। वन सेकंड, ये देखा गया कि बिकॉज ऑफ दिस हाइपोकैलिमिक स्टेट इनके अंदर कार्डियक एरिथमिया हो जाता है। जो हार्ट का अपना एक रिदम चलता है, पल्स चलता है, एक उसका जो सिग्नल चलता है, उसके अंदर इरेगुलरिटीज आ जाती है। और जैसे ये बच्चा किसी भी उस एक्टिविटी में दाखिल हुआ, जैसे ये दौड़ में गया, खेलने में गया, कोई भी स्ट्रेनस एक्सरसाइज उसने की, तो इसके ऑलरेडी इरेगुलरिटी क्रिएट हुई है हार्ट के उस रिदम में, तो इट कैन लीड टू द हार्ट अटैक, बच्चे की जान जा सकती है। और ये फिनोमेना सिर्फ इनहेलेंट अब्यूज करने के बाद आधा घंटा 1 घंटे तक ही रहता है। इसलिए जब ये घर, अगर ये सही सलामत घर पहुंच गया, घर वालों को इसका नहीं पता चलता है। सो यहाँ मैं एक स्पेसिफिक मैसेज देना चाहूंगा कि जो भी घर में, जो भी माँ बाप, जो भी टीचर्स इस तरह का जो काम कर रहा होगा, वी हैव टू कीप एन आई ऑन दिस कि ये फेविकोल एसआर कितना आता है हमारे घर में, कितना यूज हो रहा है, कहीं किसी तरह से कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है। एंड लेट्स एंश्योर कि हमारे बच्चे पहले ही अवेयर हो जाए कि इसका अब्यूज हो सकता है और इससे कितने हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस है, और हम कोशिश करें कि हम उनको इसका इंचार्ज नहीं बनाए, हम उनको इसका स्टेक होल्डर्स नहीं बनाए। यहाँ मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा कि मेरे पास एक बच्चा रेफर हुआ था फॉर ए मेंटल हेल्थ इवेल्युएशन, लेकिन जब मैं डिटेल्ड इवेल्युएशन करने लगा, आई वाज सस्पेक्टिंग कि वहाँ सब्सटेंस अब्यूज हो रहा है। और बाद में जब वो ब्रेक हुआ कि यस वो इनहेलेंट्स का अब्यूज कर रहा है, इंसिडेंटली उसके दोनों माँ बाप, दे आर रेनाउंड डॉक्टर्स ऑफ दिस प्लेस, और उन्होंने कहा कि हमारे घर में वुड का काम चल रहा है, केजीज के हिसाब से फेविकोल एसआर आ रहा है, और यही बच्चा उसको देख रहा है। हमने इसी बच्चे को इंचार्ज बना रखा है टू वर्क विद द कारपेंटर्स। एंड देयर अगर हमें वहां पर एक अवेयरनेस हो, टाइम पर एक सेंसिटिविटी हो वहां पर, तो हम एक बहुत बड़ी दुर्घटना को बचा सकते हैं। नाउ देन देयर इज अनदर सब्सटेंस जिसको हम अल्कोहल की बात करेंगे, इथाइल अल्कोहल की बात करेंगे या देसी अल्कोहल की बात करेंगे। सो वो हमारे लिए नया नहीं है, लेकिन यस उसका भी ट्रेंड जो है वो बढ़ने लगा है। लेकिन कंपेयरिंग टू द अल्कोहल प्रेवलेंस जो ऑलरेडी हमारे अक्रॉस इंडिया मौजूद है, जो कोर ये हार्ड ड्रग्स है, ओपियोइड्स की बात करें, ह्यूराइन की बात करें, इनहेलेंट्स की बात करें, कैनबिस एंड कैनबिस रिलेटेड की प्रोडक्ट्स की बात करें, उनका ट्रेंड यूथ्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नाउ कैनबिस के चर्च के मामले में अगेन यहां पर यह बात करना, सामने रखना चाहूंगा। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टेट्स अक्रॉस वर्ल्ड एक मुहिम चल रहा है कि हम कैनबिस को लीगलाइज करेंगे। जब हम बुक्स में भी देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि कैनबिस के उतने ज्यादा इफेक्ट्स नहीं है, उतने ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है, उतनी ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है कि दैट इट कैन रियली क्रिएट अ प्रॉब्लम। बट कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में मैं यहाँ पर आपके सामने शेयर करना चाहूँगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। और एंड आई हैव रेज दिस क्वेश्चन एट मनी साइंटिफिक फॉर्म्स, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी यंग एडल्ट्स कैनबिस की तरफ जा रहे हैं, और ये मैं स्पेशली मैसेज अपने जो हमारे कश्मीरी पंडित बरादरी से है, दे जस्ट वर्क ऑन इट, एनालाइज ऑन इट। मे बी अगर आप में अच्छा लगे तो देन यू कैन एग्री एंड डिसएग्री विद मी, कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारी कश्मीरी पॉपुलेशन है, जब हमारे बच्चे कैनबिस लेना शुरू कर देते हैं और बहुत ही कम डोज पर
उनके अंदर एक फिनोमेना डेवलप हो जाता है जिसको हम साइकोसिस बोलते हैं। और हमारे यहाँ पर जो अपने मेरे हॉस्टल में भी मैं देख रहा हूँ कि एक कॉमन डायग्नोसिस में बनाता हूँ कैनबिस इंड्यूस्ड साइकोसिस, जो हम अक्रॉस इंडिया नहीं देखते, जो मैंने झारखंड में नहीं देखा, जो मैंने बिहार में नहीं देखा, जो मैंने हरियाणा में नहीं देखा, लेकिन यहां मैं देख रहा हूं कि एक बहुत ही कम डोज पर, जिस पर एक्सपेक्टेड नहीं है साइकोसिस हो जाए, और मैं देख रहा हूं कि हमारे बच्चों के अंदर वी लेबल देम, वी गिव देम अ डायग्नोस कैनबिस इंड्यूस्ड साइकोसिस, जहां पर इनके अंदर परसिक्यूशन, अनरियलिस्टिक फीचर्स काफी ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज, एंड आई हैव अ हंच फॉर इट, इज इट कि हमारे कश्मीर में जो कैनबिस ग्रो हो रहा है, क्या वो बहुत ज्यादा पावरफुल है दैट इट लीड्स टू दिस इफेक्ट, और जो हमारी कश्मीरी लोगों की पॉपुलेशन है, क्या हम लोग जेनेटिकली उतने ज्यादा ससेप्टेबल है कि हम लोगों को ये टॉलरेट नहीं कर पाता है, और हमारे यहाँ पर कैनबिस इंड्यूस्ड साइकोसिस बहुत कॉमन हो जाती है, जबकि लिटरेचर, ये कॉमन ग्लोबल लिटरेचर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। बट ऑन ग्राउंड, व्हेन आई सी माय ओन हॉस्पिटल, व्हेन आई टॉक टू माय कोलीग्स, when I talk to my counterparts, when I even talk to my colleagues in Jammu, they also agree that yes, we are seeing this phenomena happening here. Now, usme another thing is, is it cannabis grown in this area that is more powerful and that is leading to this effect? Again, that's a question of debate. Now, coming to another thing, जो मैं स्पेसिफिकली पेरेंट्स और टीचर्स से बात करना चाहूंगा। नंबर वन, अक्सर मुझे पूछा जाता है कि इसके पीछे क्या रीजंस होता है कि क्यों लोग कैनबिस के ड्रग अब्यूज के वल्नरेबल हो जाते हैं। इट इज नॉट कि पूरे अक्रॉस पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे वो ड्रग अब्यूजर है, नो। अक्रॉस कश्मीर सारे बच्चे ड्रग अब्यूजर, नो। लेकिन व्हाट आर द वल्नरेबिलिटीज, कौन बच्चे इसमें जा रहे हैं, किन के अंदर वल्नरेबिलिटी ज्यादा है। आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, मैं अपने जो 11-12 साल का मेरा काम इसमें है, मैं इन बच्चों को 3 ग्रुप्स में बांट देता हूं। एक ग्रुप वो बच्चा है जिनको कोई इश्यूज नहीं है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ड्रग अब्यूज कर रहे हैं। रीजन, क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनके अंदर बहुत ही एनर्जी है, और वो लोग, उनको हम बोलते हैं दीज आर, इनके अंदर थ्रिल सीकिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इनके अंदर एडवेंचर सीकिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। और व्हेन यू टॉक टू दोज चिल्ड्रन, आपने क्यों किया? मैंने ऐसे ही किया, मजा लेने के लिए। इवन कुछ बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि इस पर लिखा था डोंट इनहेल, मैंने सोचा मैं इनहेल करके देख लूंगा। इस पर लिखा था कि इसका डिपेंडेंस प्रॉपर्टी है, लेकिन मैंने अपने दोस्तों को चैलेंज, और मुझे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि मैं हीरोइन का नशा आप लोगों के साथ करूंगा, लेकिन मैं डिपेंडेंट नहीं हो जाऊंगा। जस्ट टू सीक थ्रिल, जस्ट टू सीक नॉवेल्टी आउट ऑफ इट। ये वो ग्रुप है जिनको कोई पर्सनल प्रॉब्लम। देन हम लोग इसमें दूसरा एक ग्रुप जो मैंने देखा है बच्चों का, जिनको मैं बोल रहा हूं कि दे बिकम द कैजुअलिटी ऑफ ड्रग अब्यूज, बिकॉज उन लोगों को अपने लेवल पर, पर्सनल लेवल पर, घर के लेवल पर, स्कूल के लेवल पर, एकेडमिक्स के लेवल पर, पीयर ग्रुप के साथ दे हैव इश्यूज, दे आर स्ट्रगलिंग विद सम प्रॉब्लम्स, और वो लोग कूप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अक्सर बच्चों में आजकल जब हम उनसे बात करें क्यों आपने नशा किया, रिलेशनशिप फेलियर, लड़की ने मुझे धोखा दे दिया, लड़की का फोन बार बार वेटिंग में आ रहा था, लड़की मेरे साथ फेथफुल नहीं है, और उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं नहीं बच पाऊंगा, और मुझे नशे के उस दौर में चला गया। So we say they are trying to cope up with their problems, and they take it as an escape route. They take it as a faulty, unhealthy coping problem, unhealthy coping style. और यहाँ अगेन मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जितने भी लोग सुन रहे होंगे, कि इससे उनकी प्रॉब्लम हल नहीं होती है, बल्कि वो एक छोटी प्रॉब्लम से
निकल के इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि दैट इट हैज फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ तीसरा मैं देख रहा हूं कि तीसरा ग्रुप बच्चों का, वो ग्रुप जिनको ना तो पर्सनल प्रॉब्लम्स है, ना उनके साथ कोई ऐसा नॉवेल्टी सीकिंग बिहेवियर है, लेकिन दे टेक सब्सटेंस अब्यूज आउट ऑफ इग्नोरेंस। अक्सर स्कूलों में हम देख रहे हैं कि यंग बहुत छोटे बच्चे, अच्छा आपने क्यों पीना शुरू किया? मुझे दोस्तों ने बोला कि आप सर के साथ बात नहीं कर पाते हो, आप मैम को सवाल का आपको जवाब पता होता है लेकिन आप जवाब नहीं दे पाते हो। और टीन एज वाला बच्चा, मैं किसी लड़की पर क्रश हुआ इसको कि वो इसको बोल नहीं पाता है, उसके दोस्त बोल देते हैं आप ये ले लो इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगी, आप ये ले लो इससे आपको हिम्मत आ जाएगी। So they take it, they don't know what substance abuse is, so they take it out of ignorance. Now all these three groups को जब हम context में रखेंगे, इनको जब हम नजर में रखेंगे, तो हम इनका इंटरवेंशन डेवलप प्लान कर सकते हैं, हम इनकी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज को प्लान कर सकते हैं। पहला जो हमारा एडवेंचरस ग्रुप है, उन बच्चों को, इन अपने हर माँ बाप को, हर टीचर को यह चाहे कि मैं जिस बच्चे के साथ डील कर रही हूं या डील कर रहा हूं, यह बच्चा किस ग्रुप में आ रहा है। क्या यह हाईली इंटेलिजेंट बच्चा है? क्या यह हाईली एनर्जेटिक बच्चा है? क्या यह एडवेंचर सीकिंग बच्चा है, इसके अंदर एडवेंचर सीकिंग टेंडेंसी है? तो मैं उसको उसी तरह से चैनलाइज करूं, मैं उसको उसी तरह से स्टिमुलेट करूं, मैं उसको उसी तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूं ताकि इसकी जो ये थ्रिल सीकिंग टेंडेंसी है वो किसी ना किसी हद तक एड्रेस हो जाए। और जो सेकंड वाला ग्रुप है, जो जिनके अंदर प्रॉब्लम्स आती है, जिनके अंदर पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, वी हैव टू सी कि कहीं मेरा बच्चा किसी स्ट्रगल में तो नहीं है। अक्सर माँ बाप घर में लड़ाई करते हैं एंड दे फील कि हमारे बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ता है। अक्सर टीचर इनसेंसिटिवली किसी बच्चे को ऐसा कमेंट कर देता है कि उस बच्चे का सारा सेल्फ एस्टीम कोलैप्स हो जाता है, उस बच्चे का सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। सो वी हैव टू सी कहीं हमारा बच्चा किसी ऐसी स्ट्रगल में तो नहीं है। सो वी go get involved with that child and help him, show him that there are alternate ways, there are healthy and unhealthy ways to cope up with this problem. And as a parent हम उसको मॉडल बन सकते हैं, as a teacher हम उसका मॉडल बन सकते हैं। And then the third group जो substance abuse की तरफ जाते हैं, because of the ignorance, because of the lack of knowledge, because of the lack of information, उसके लिए it is the high time, this is my belief and I am seeing results on ground, कि हमें as an administration, as a state, as a school authority, as parental associations, as doctors, हमें proactively बच्चों के साथ इस सब्जेक्ट को डिस्कस करना है बिफोर, ताकि कल को कोई बच्चा ये ना बोले कि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। So we make them aware, we make them to know about its all effects and ill effects. And तीसरा चीज जो मैं यहां पर स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगा कि एज अ पेरेंट हमें इस सब्जेक्ट के बारे में जानना है, एज अ टीचर हमें इसमें जानना है, देन ओनली वी गेट इन्वॉल्व विद आवर चिल्ड्रन। क्योंकि अक्सर मैं देख रहा हूं बच्चे, वो लोग इंटरनेट को एक बहुत सा रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मान लेते हैं, और मैं देख रहा हूं कि कई सारी वेबसाइट्स है जो इन चीजों को प्रमोट भी करते हैं, और वो किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, वो आधा ही इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। लाइक कैनबिस की जब हम बात करेंगे, चर्च की जब हम बात करेंगे, चर्च के बहुत सारे मेडिसिनल इफेक्ट्स भी है, लेकिन जब आप उन वेबसाइट्स को देखेंगे वहां पर आपको इसके हार्मफुल इफेक्ट्स पर बात नहीं हुई है। बहुत सारे बच्चे आजकल हमें ये बता रहे हैं कि नहीं मैं वीड ले रहा हूं, किस लिए ले रहा हूं, क्योंकि बॉलीवुड में फलानी लोग वीड ले रहे हैं, हॉलीवुड में फलानी लोग वीड ले रहे हैं, और अक्सर एक टेंडेंसी मुझे मिल रही है गर्ल्स में कि इससे हमारा वेट कंट्रोल हो जाता है। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, बट मैं उस बच्ची को या उस बच्चे को ये बताना चाहूंगा
कि अगर आपने खाली वेबसाइट पर यह पढ़ा कि इससे वेट कम हो जाएगा या किसी मॉडल से यह सुना कि इसका वेट कंट्रोल हो जाएगा, बट आप इसके साथ ये भी पढ़ो एट व्हाट कॉस्ट. You want to lose weight with wheat, okay, but you should know the cost. At the cost of losing your memory, are you ready? At the cost of losing your intelligence, are you ready? At the cost of becoming 10 times more vulnerable to cancers, are you ready? At the cost of chances to lose your fertility, are you ready? अगर ये सब चीजें भी हम साथ में बताएंगे तो देन द चाइल्ड हैज द इन्फॉर्म्ड चॉइस कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा. सेकंड, जो मैं यहां पर अगेन दूसरी बात बताना चाहूंगा, जो मैं अक्सर देख रहा हूं कि कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में जब 2008 में हमने ड्रग अब्यूज की बात की, जे&के पुलिस ने ये एक इनिशिएटिव लिया, सीइंग सम ग्राउंड रियलिटीज. हमारी एज अ होल सोसाइटी डिनाइल में थी. हमारी एज अ सोल सोसाइटी डिनाइल में थी कि यहां कोई ड्रग अब्यूज नहीं है, ये ऐसे ही बना रहे. लेकिन 2008 से 2020 तक आज हम उस लेवल पर आ रहे हैं कि हमारा हर पेरेंट, हर सोसाइटी, हर कम्युनिटी, हर पॉलिटिशियन, हर ब्यूरोक्रेट ये एग्री कर रहा है कि ड्रग अब्यूज एक अगली शेप ले रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर. सो हम एक मास डिनाइल से एक्सेप्टेंस की तरफ आ रहे हैं. लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूं कि जो पेरेंट्स, जब मैं किसी पेरेंट्स से बात करता हूं, जब मैं किसी बच्चे को इवेल्युएट करके पेरेंट्स को एड्रेस करता हूं, तो पेरेंट्स इज अगेन एज अ पेरेंट हम लोग डिनाइल में, और वो मैं अक्रॉस इंडिया भी देख रहा हूं. हम लोग एज अ पेरेंट जब भी हम ड्रग अब्यूज की बात करें, हमें एक पूरा विश्वास है कि मेरा बच्चा नहीं करता है. रादर मैं कहूंगा कि एक हमारी ब्लाइंड फेथ है, और हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है. हम लोग 10 लोगों का नाम गिनाते हैं, फलानी रिश्तेदार का बच्चा करता है, फलानी पड़ोस का बच्चा करता है, फलानी मोहल्ले में करता है, लेकिन मेरा बच्चा नहीं करता है. और ये डिनाइल जो एट अ लेवल ऑफ पेरेंट एंड एट द सेम टाइम कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट जे&के में मैं सारे स्कूल्स में प्रोग्राम कर रहा हूं. अगेन मैं देख रहा हूं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में, हर स्कूल मे बी फॉर देयर रेपुटेशन, और वो लोग इसको इतना प्रेस्टीज बना रहे हैं कि मेरे स्कूल में ऐसा नहीं हो रहा है, और दे विल से कि दे विल बिकम वेरी डिफेंसिव कि हमारे स्कूल में इस तरह की कोई बात नहीं हो रही है, बाकी स्कूलों में हो रहा है. और हम एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ स्कूल यूनिट उस डिनाइल में है. व्हाट आई एम सीइंग ऑन ग्राउंड कि जब हमारे पास ये बच्चे हमारे रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी में आते हैं तो सबको पता होता है, फैमिली को, रिश्तेदारों को, कम्युनिटी मेंबर्स को, मोहल्ले वालों को, पुलिस को, इवन स्कूल टीचर्स को पता होता है. लेकिन एक माँ बाप जिनको सबसे लास्ट में पता चल जाता है, और उनको तब पता चलता है जब कोई ऐसी इवेंट और ऐसा कॉन्सिक्वेंस हो जाता है जिसकी वजह से ये सारा आउट ऑफ हैंड चला जाता है. तो यहां मैं आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट टू एवरी पेरेंट कि अगर आपका पड़ोस का बच्चा ड्रग अब्यूज में जा सकता है, जस्ट थिंक कि हमारा बच्चा क्यों नहीं जा सकता. क्या हमारे बच्चे के पास मोबाइल नहीं है? क्या हमारे बच्चे के पास इंटरनेट नहीं है? क्या हमारा बच्चा बाहर नहीं जाता है? क्या हमारे बच्चे के पास पैसे नहीं है? व्हाट मेक्स हिम प्रोटेक्टिव? व्हाट इज नॉट अवेलेबल विद हिम? तो लेट्स हम इस डिनाइल से आए ताकि हम इस चीज को एक्सेप्ट करें, ताकि हमें बहुत एट एन अर्ली स्टेज पता चल जाएगा. क्यों मैं ये बात बताना चाहूंगा? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई भी बच्चा जब ड्रग अब्यूजर बनता है वो एक रात में नहीं बनता है, एक हफ्ते में नहीं बनता है. इट टेक्स मिनिमम 2 to 3 months टू रीच टू अ लेवल जहां पर हम बोलेंगे कि नहीं, ये बच्चा कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गया है इस सब्सटेंस पर और उसको रिहैब फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है. टू मी, अगर एज पेरेंट, एज टीचर हम लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस आ जाए, हम लोग इन्वॉल्व हो जाए और हम लोग अपनी नॉलेज अपडेट करें ताकि हमें इन चीज़ों का पता रहे, बहुत सारे बच्चे रिहैब फैसिलिटीज तक नहीं पहुंचेंगे. हम उनको एट अ वेरी अर्ली स्टेज, क्योंकि
इट इज नॉट ए डिस्क्रीट कि ये हो गया तो बस ये सब्सटेंस हो गया। पहले मैं जो टाइम की कमी की वजह से जल्दी से इस पर थोड़ा सा तेजी से इस पर एक रिवीजन मार दूंगा कि कोई भी बच्चा सबसे पहले ड्रग को यूज करता है, उसको कोई इंटेंशन नहीं होता है डिपेंडेंट बनने का। फिर एक टाइम आता है विषय कि अब ये ड्रग को मिसयूज करने लगा है, अब ये सब्सटेंस को मिसयूज करने लगा है। फिर एक टाइम आता है कि हम बोलते हैं कि अब ये सब्सटेंस को एब्यूज करने लगा है। उसके बाद एक टाइम आता है जब हम बोलते हैं कि अब ये सब्सटेंस पर डिपेंडेंट हो गया है। जब ये डिपेंडेंस स्टेज पर पहुंचते पहुंचते इसको काफी टाइम लगता है। और अगर हमें इससे पहले इसका पता चल जाए, मैं कोर्ट में डी एडिक्शन फैसिलिटीज की जरूरत नहीं है। एक टीचर, एक पेरेंट, स्कूल का काउंसलर मिलकर इस बच्चे को ला सकते हैं और रिहैब फैसिलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब ये डिपेंडेंस क्राइटेरिया में आ जाता है, डिपेंडेंस क्राइटेरिया क्या है कि जब ये बच्चा इस नशे के बगैर नहीं रह सकता है, जब ये बच्चा दुनिया के जितने भी प्लेजर सीकिंग बिहेवियर्स हैं उन सबको बंद कर देता है, सिर्फ ऐसी एक चीज के पीछे लग जाता है। और जब इस बच्चे को हम जबरदस्ती ये बंद कर देते हैं, इसके अंदर विड्रॉल्स हो जाते हैं। विड्रॉल्स यहाँ मैं एक्सप्लेन करूंगा कि उसको फिजिकल विड्रॉल्स होते हैं, उसको साइकोलॉजिकल विड्रॉल्स होते हैं। साइकोलॉजिकल विड्रॉल उसकी सोच को रिलेटेड है, उसके अर्ज को रिलेटेड है, और वो बोलता है कि मैं इसके बगैर कुछ नहीं सोचता हूं, मैं सिर्फ इसी के पीछे सोचता रहता है कि मुझे ये ड्रग कहां से मिल जाए, और उसको उसकी क्रेविंग हो जाती है अगर नहीं मिलेगा। फिजिकल विड्रॉल की बात करूंगा, जहां पर जैसे ही उसको ड्रग बंद हो जाए, उसके शिवरिंग में बेचैनी हो जाती है, उसके जिस्म में उसकी पल्पिटेशन, उसको हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, कई बार उनको डायरिया लग जाता है, कई बार उनको गूस बम्प्स महसूस होते हैं, कई बार उनको डिस्ट्रेस महसूस होता है, कई बार उनको स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो जाती है, और हेरोइन को लेकर कई बार उनको इतनी उल्टियां लग जाती है, उतने डायरिया हो जाते हैं कि हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेडिकल चैलेंजेस आ जाते हैं। और कई बार उनको, जिसको हम विड्रॉवल सीजर बोलते हैं, जैसे ऐसा लगता है जैसे ये मिर्गी की अलामत है, लेकिन वो मिर्गी की बीमारी नहीं है, वो एपिलेप्सी की बीमारी नहीं है, वो सिर्फ ड्रग रिलेटेड विड्रॉवल सीजर है। अक्सर अल्कोहल में हमें मिलता है, अक्सर स्लीपिंग पिल्स में हमें मिलता है। यहां मैं एक बात भूल गया था, जब भी मैंने कॉमन ड्रग्स की बात की, कॉमन सब्सटेंसेस की बात की, स्लीपिंग पिल्स में भूल गया था। बहुत सारे बच्चे स्लीपिंग पिल्स का अब्यूज करने लगे हैं। शुरू करते हैं 1 से एंड कर लेते हैं 40-50 स्लीपिंग पिल्स एट अ टाइम, और अगेन उनके अंदर बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है कि जब उसको अगले दिन टाइम पर उतना डोज नहीं मिलेगा, देयर इज़ अ चांस कि उसके अंदर विड्रॉवल सीजर्स हो जाएगा। और उसमें हमारे मेडिकली हमारे लिए चैलेंज ये होता है कि जैसे वो बाइक पर जा रहा था, बच्चों के साथ जा रहा था, पार्क में गया था, कहीं से किसी फेस्टिवल में गया था, वहां जब उसको सीजर हो जाता है, गिर जाता है, मुंह से जाग आ जाती है, जीभ कट जाती है, और वहां कोई नहीं होता है। और उस वक्त एज ए टिपिकल प्रॉपर मेडिकल प्रोटोकॉल में हॉस्पिटल उसको जब पहुंचाते हैं, क्योंकि वहां इंफॉर्मेंट कोई नहीं होता है, और डॉक्टर्स को वो उनकी एक जेन्युइनली और प्रॉपरली प्रोटोकॉल में ही उनको उसको सीटी स्कैन कराना है, एमआरआई कराना है, और उसको सीजर डिसऑर्डर की तरह ही ट्रीट करना है अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। और उसके बावजूद जब हम देखते हैं कि बहुत कम पेशेंट्स का वो लेबल हट जाता है, बहुत कम पेशेंट्स का वो डायग्नोसिस रिवाइज हो जाता है, क्योंकि अक्सर जब हम इन पेशेंट से बात करेंगे क्लिनिकल सेटिंग्स पर, एज डॉक्टर हमें भी उसकी एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए। मैं कहूँगा हमें डॉक्टर्स को भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हम लोग वो स्पेस क्रिएट करें क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स के अंदर, ताकि हम बच्चे से कंफर्टेबली ये इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। कभी कभी एज डॉक्टर इनसेंसिटिवली हम 10 लोगों के बारे में सामने उससे पूछ लेते हैं, आप कोई नशा तो नहीं करते हो? माँ बाप उस बच्चे के साथ में वो इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि वो बच्चा जवाब देगा कि हाँ मैं नशा करता हूँ। उतनी बोल्डनेस और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस अभी नहीं है हम में। सो एज ए डॉक्टर मुझे वो स्पेस क्रिएट करना है ताकि ये बच्चा कंफर्टेबली मेरे साथ बात कर पाए। Now, coming to the elaborating on the role of teachers and this
पेरेंट्स, इंपॉर्टेंस कहाँ है टीचर्स की? क्योंकि पर्सनली मैं देख रहा हूं ये बच्चा ड्रग अब्यूज जिस एज में शुरू करता है उस एज में ये स्कूल गोइंग बच्चा होता है। बहुत सारे कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, J&K के कॉन्टेक्स्ट में मैंने जो देखा है कि जितने भी हमारे टीचर साहिबान है, आई हैव नो डाउट विद देयर कॉम्पिटेंस, आई हैव नो डाउट विद देयर इन्वॉल्वमेंट, आई हैव नो डाउट विद देयर सिंसियरिटी, लेकिन ड्रग अब्यूज चैप्टर को लेकर ट्रेनिंग्स देने की उनको जरूरत है। क्योंकि एक प्रोवर्ब जो मुझे याद आ रहा है कि आईज कैन नॉट सी व्हाट ब्रेन डज नॉट नो। इन टीचर्स को मैं चाहूंगा, श्रीनगर में हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की है, DPS श्रीनगर के अंदर हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की है, एंड आई एम सो ग्लैड टू दैट स्कूल कि उतना बोल्डली दे आर इनवाइटिंग एंड सेइंग हमारे टीचर्स को आप ट्रेन करो, ताकि वो टीचर्स हमारे बच्चों को भी हेल्प करें और उसके साथ साथ अपने घर में अपने बच्चों को भी हेल्प करें। और टीचर जब हमारा ट्रेन हो जाएगा उससे क्या है, देयर विल बी अर्ली आइडेंटिफिकेशन, देयर विल बी अर्ली स्क्रीनिंग। और अब हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस में किट्स ऐसे आए हैं, जिस तरह हमारे पास अभी आजकल रैपिड किट आया है जिससे हम कोविड को डिटेक्ट कर पाते हैं विद अ वेरी फास्ट लिमिटेड टाइम। उसी तरह स्क्रीनिंग किट्स आए हैं कि अगर हमें लग रहा है कि किसी बच्चे में इस तरह की प्रॉब्लम है, वी कैन डायरेक्टली गो विद दैट स्क्रीनिंग और इसको हम एक एंड अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, टीचर्स के साथ हमें यह ट्रेनिंग देना भी जरूरी है कि उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाए इन बच्चों के साथ। क्योंकि किसी भी बच्चे के साथ जब यह प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वट एवर द रीजंस, लेकिन बाद में वो उस लेवल पर पहुंच जाता है कि वो उसकी एक मजबूरी बन जाती है। हम एज अ टीचर, एज अ पेरेंट उस बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो जाए एंड फैसिलिटेट करें कि हम इसको नेटवर्किंग करें कि किस तरह से हम इसको एक मौका दें, एक्सेप्टेंस दें जब ये ठीक हो जाएगा, सो दैट इसका इंटीग्रेशन वापस स्कूल में हो जाए और क्लास में हो जाए और कम्युनिटी में हो जाए। रादर दिस माय अपील टू द टीचर्स कि हम इसको एक एस्केप रूट ना बनाए, हम उसको एक वो प्रेस्टीज ना बनाए कि हम इसी बेसिस पर बच्चे को स्कूल से निकाल दें, और हम पेरेंट्स को उस तरह से कम्युनिकेट करें कि दोज पेरेंट्स स्टार्ट फीलिंग डिसरेस्पेक्टेड, दोज पेरेंट्स स्टार्ट फीलिंग ह्यूमिलेटेड। मेरी एक ही मैसेज है जो मुझे अपने टीचर ने दी थी कि हम लोगों को एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर एक जेन्युइन डिजायर होना चाहिए कि हमारा ये बच्चा ठीक होना चाहिए, ताकि उस तरीके से मैं कम्युनिकेट करूं, उस तरीके से मैं फैसिलिटेट करूं कि इसका फर्दर स्टिग्मेटाइज ना हो जाए और फर्दर हम इसको पुश ना करें ड्रग अब्यूज के लिए। स्कूल से निकालना अल्टरनेटिव नहीं है अनलेस वी हैव ट्राइड ऑल द मेजर्स। प्लस इसके अलावा दिस इज एन आइडिया जो मैं अपने यहाँ पर आजकल शेयर कर रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू सी कि कोई स्कूल इसको ले जाए। हम स्कूल्स को एज अ ड्रग फ्री स्कूल्स बना सकते हैं। उसमें बिकॉज नाउ इट इज ऑल डिजिटल, हमारा सारा डेटाबेस होता है, बच्चों का भी होता है, टीचर्स का भी होता है, ड्राइवर्स का भी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी होता है। In order to make it student friendly, in order to make it unbiased, what we can do, administration can fix कि हर महीने, जो मैं देख रहा हूँ एक बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में आजकल हो रहा है, हम लोग एक लकी ड्रॉ के जरिए 10 नाम निकल सकते हैं, और उस 10 नाम जो भी निकलेगा उसमें प्रिंसिपल का भी नाम निकल सकता है, उसमें डायरेक्टर का भी नाम निकल सकता है, उसमें गेट कीपर का भी नाम निकल सकता है, जिसमें हम लोग उनका ड्रग स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और अगर उनमें से ड्रग स्क्रीनिंग में कोई पॉजिटिव निकल आया, वी विल अंडर कॉन्फिडेंशियल मेजर्स हम उसका डॉक्टर साहब, यू आर लाइव, यू कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। सो उसमें हम लोग एक मैसेज दे सकते हैं स्कूल की तरफ से, कैंपस की तरफ से, कि हमारा स्कूल, हमारा कैंपस ड्रग फ्री कैंपस है
or it gives a very powerful message कि this thing is not acceptable in the school campus. क्योंकि मैं देख रहा हूं कि स्कूल एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, स्कूल के कैंटीन्स प्लेटफॉर्म बन जाते हैं, स्कूल के बैकयार्ड्स प्लेटफॉर्म बन जाते हैं, और स्कूल के गेट के सामने कोई वेंडर बैठ जाता है, वो दोनों तरह के सिगरेट बेच देता है, और बच्चे जाकर उसे बोल देते हैं लोडेड, एंड ही आस्क्स कंज्यूमर्स कि लोडेड चाहिए या अनलोडेड चाहिए। और अगर स्कूल एक सेंसिटिविटी दिखाएगा, इस तरह का मैसेज आएगा, वो लोग भी 10 बार सोचेंगे उस स्कूल के सामने कोई भी चीज बेचने के लिए। वन, नाउ कमिंग टू द पेरेंटल पार्ट ऑफ इट, पेरेंट्स के लिए अगेन सबसे पहले एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि अगर मेरा पड़ोस का बच्चा कर रहा है, शायद मेरा बच्चा भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। सेकंड, किस तरह के एब्यूजेस है, किस तरह की सब्सटेंसेस है जो दुनिया में आ रही है, because through this courier, through this Amazon, through this digital, through this internet world, now we are seeing the whole world becoming one, and anything can reach to anywhere, anytime, at any place. So as a parent, मुझे चाहिए, एज ए पेरेंट हमें चाहिए हम इस तरह के प्रोग्राम्स में शामिल हो जाए। सबसे पहले हम अपने आप को अपडेट करें कि क्या मुझे इन चीजों की पता है। वन, सेकंड, मैं अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो जाऊं। हम आजकल देख रहे हैं कि पेरेंट्स की जो इन्वॉल्वमेंट है बच्चों के साथ, क्वांटिटेटिवली वो शायद बढ़ गई होगी, लेकिन क्वालिटेटिवली वो बहुत कम हो गई है। जिस पेरेंट को ये नहीं पता चल जाए कि उसके बच्चे ने पहले सिगरेट कब शुरू किया था, जिस पेरेंट को ये नहीं पता चल जाए कि मेरा बच्चा कब उस डिवेटेड पीर ग्रुप के साथ जाने लगा, जिस पेरेंट को ये पता नहीं चल जाएगा कि मेरा बच्चा बिकॉज ऑफ द माइलस्टोन्स ऑफ लाइफ कब एक पर्सनल स्ट्रगल में आ गया, उस पेरेंट को अपने ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठाना चाहिए कि शायद मेरी पेरेंटिंग सही नहीं है और मुझे एक इनसाइट डेवलप करना है कि मुझे कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दिखाने की जरूरत है। देन पेरेंट्स इंपॉर्टेंट, कई टीचर्स के साथ मेरी बात हुई है, दे सेड क्या हमें पता चल गया था इस बच्चे के बारे में, लेकिन पेरेंट्स इतने डिफेंसिव है कि हम लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि पेरेंट्स को कम्युनिकेट करें। आई थिंक एज पेरेंट्स हम लोगों को भी वो ओपननेस दिखानी है टुवर्ड्स स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, टुवर्ड्स द स्कूल मैनेजमेंट, सो दैट वी आर ओपन टू इट। और जैसे वो एक्सेप्टेंस आ जाएगा, वो टीचर भी कंफर्ट महसूस करेगा मैसेज शेयर करने में, और पेरेंट को भी एक एक्सेप्टेंस जब आ जाएगी तो हमारा एक अर्ली आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा और एक अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है और बहुत बड़ी दिक्कत बच सकती है। इसके अलावा ड्रग अब्यूजर्स के साथ जो मेरा अपना कंसेप्चुलाइजेशन है, हमारे दो ही मॉडलिटीज हो सकती है। नंबर वन, वो बच्चे जो इफेक्ट हुए हैं उनको किस तरह से ट्रीट करें और वापस कम्युनिटी में रिहेबिलिटेट करें। सेकंड, कि वो बच्चे जो एडिक्ट नहीं है लेकिन उनके अंदर वल्नरेबिलिटी है, हम उन बच्चों को किस तरह से बचा पाएंगे, हम उन बच्चों को किस तरह से, हम लोग किस तरह कितनी तरह की प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं ताकि हम उन बच्चों को बचा पाएंगे, या अगर वो बच्चे कभी गए उसमें, हम लोग एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर पाए ताकि हमें उसका जल्दी से जल्दी पता चल जाएगा। उसमें बहुत सारे मामलात हैं जो आए दिन चेंज हो जाते। अभी एक दौर चलने लगा है, अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोप में आजकल जो एडिक्शन सिनेरियो है दैट हैज गॉन टुवर्ड सिंथेटिक ड्रग अब्यूज। सिंथेटिक हेरोइन की बात हो रही है, सिंथेटिक कैनबिस की बात हो रही है, सिंथेटिक ओपियाइड्स की बात हो रही है, एंड इट हैज स्टार्टेड फ्लडिंग द यूरोपियन मार्केट्स। क्या वो इंडिया तक नहीं आ सकते हैं? क्या वो हिमाचल नहीं आ सकते? क्या वो जे&के नहीं आ सकते? क्या वो किसी भी स्टेट में नहीं आ सकते? आ सकते हैं। एंड उनका दूसरा नाम ही है डिजाइनर ड्रग्स। They are designed to fool the system. They are designed to fool our laboratory systems. They are designed to fool the legal system.
और जब तक उनके खिलाफ लॉज बन जाते हैं, जब तक उनके खिलाफ हमारा सिस्टम अपग्रेड हो जाता है, तब तक बहुत नुकसान हो जाता है। सो एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ कम्युनिटी कॉन्शियस सिटीजन ऑफ इंडिया, हम लोग थोड़ा सा इंसाइट डेवलप करें कि हम अपनी नॉलेज को अपडेट करें ताकि ये सब चीज़ें हमारे से मिस ना हो जाए। और प्लस जो मैंने पर्सनली देखा है कि जिनका एक इम्पैक्ट है, whatsoever religion we have, let's talk about religious values with our children. Whatsoever society we have, let's talk about societal values with our children. Whatever family we have, let's talk about let's try to transfer our family values to our children. और ये वैल्यू सिस्टम अगर हमारे बच्चों के अंदर बन जाता है, अगर स्कूल्स और पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे कि हमारी क्या वैल्यू इन्वेंट्री बन जाती है, ताकि लाइफ में जब भी हम कोई इस तरह का डिविएशन ले, हमारे पास हमेशा एक कंपैरिजन रहे, क्या जो मैं काम कर रहा हूं, क्या जो मैं एक्ट कर रहा हूं, क्या जो मैं जिस बिहेवियर में इंडल्ज हो रहा हूं, क्या ये मेरे वैल्यू सिस्टम के साथ जा रहा है या ये दो चीजें अलग अलग है। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स, इट हेल्प्स इवन ए ड्रग एडिक्ट टू रिकवर। जब मैं देख रहा हूं कि किसी बच्चे को पर्सनल एज अ साइकोलॉजिस्ट इवेल्युएट करता हूं, जब मैं देख रहा हूं कि इसके अंदर वैल्यूज, इंटैक्ट वैल्यूज है और इसको एक डिस्क्रिपेंसी है अपने वैल्यूज और ये क्या कर रहा है, मुझे एक जमानत मिलती है कि ये बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। और जब ये ठीक हो जाएगा, इसके अंदर रिलैप्सेस के चांसेस कम है। ड्रग अब्यूज की हमें इस कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत जरूरी बात करनी है, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूं जब से ये हीरोइन का एपिडेमिक हुआ है, टू मी हीरोइन एपिडेमिक इज मोर डेंजरस देन दिस कोविड एपिडेमिक पैंडेमिक टू दिस पार्ट ऑफ द ग्लोब, जो मैं पर्सनली यहां पर देख रहा हूं। क्योंकि इन बच्चों के अंदर ये बहुत ज्यादा जल्दी से फास्ट रफ्तार में इनके अंदर डिपेंडेंस आ जाता है। सेकंड, ऑरल से इंजेक्टेबल्स पर ये बहुत फास्ट जाते हैं, जिसकी वजह से दे बिकम वल्नरेबल टू हेपेटाइटिस सी। अभी मैं देख रहा हूं कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, आउट ऑफ एवरी 10 ड्रग एडिक्ट्स, 1 या 2 बच्चे मुझे हेपेटाइटिस सी के डायग्नोज हो जाते हैं। और दे बिकम मोर, जब हम अक्रॉस इंडिया की बात करेंगे, दे बिकम मोर वल्नरेबल फॉर HIV, क्योंकि जब ये सीरीज यूज कर लेते हैं, जब ये नीडल यूज कर लेते हैं, ये एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। अगर उनमें से एक कोई इन्फेक्ट हो जाता है तो पूरा ग्रुप उस जद में आ जाता है, पूरा ग्रुप उस चेन में आ जाता है। सो आई वुड ट्राई टू एंड हियर और विद द मैसेज कि इट इज नॉट कि हम ड्रग अब्यूज को 100% रोक सकते हैं, नॉट पॉसिबल एट ऑल। कम चाहे हम सारे एजेंसीज एक साथ काम करें, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज पॉसिबल कि हम इस ड्रग अब्यूज को कम कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को रोक सकते हैं, हम अपने बच्चों को साथ इसकी बात कर सकते हैं, हम अपने बच्चों के अंदर वैल्यू इन्वेंट्रीज बना सकते हैं, हम अपने बच्चों को एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और अगर वो कभी उसमें चला जाएगा, हम एट एन अर्लीस्ट इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। We will and we can do it. Thank you, boss. Thank you, Dr. Saab. A very, very informative session. जो बात आज, I think many parents live in a world of denial कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बच्चा शायद कभी ड्रग एडिक्ट नहीं बनेगा, मेरा बच्चा कभी सब्सटेंस अब्यूज नहीं करेगा। तो मैं उनको कहीं ना कहीं बताना चाहूंगा कि एक पेरेंट होने के नाते, एक जागरूक पेरेंट होने के नाते, ये हमारी ड्यूटी है कि हम हर प्रिकॉशन को लेकर चलें, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद जो बच्चे आज ड्रग एडिक्शन का शिकार हैं, उनके पेरेंट्स ने भी यही सोच रखी थी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आज हमारे बच्चों के पास हर वो एवेन्यू है जो दूसरे बच्चे के पास थी। तो क्यों ऐसा क्या लगता है हमें कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं मिसगाइड नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं उस ट्रैप में नहीं फंस सकता? तो बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों से बात करें ड्रग्स को लेकर, हम उनको वार्न करें, हम उनको बताएं इसके नेगेटिव्स क्या है। दे नीड टू बी मेड अवेयर। जैसे हम मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्कूल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि डीपीएस ने ड्रग अब्यूज पे बात
करवानी शुरू करी, टीचर्स को इन्वॉल्व किया है इसको लेकर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेक्सुअल एजुकेशन के साथ साथ अब समय आ गया है कि स्कूल करिकुलम में ड्रग्स को लेकर भी एक चैप्टर्स लाया जाए और इम्पोर्टेंट पार्ट बनाया जाए। आज का जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है, वी हैव डेलिबरेटली नॉट नेमिंग एनीवन हु इज आस्किंग द क्वेश्चंस. First time we have getting more questions on email than we got on a live interactive session, maybe because of the topic or stigmas attached to it. एक सवाल जो पहला ही आया है आज, जो एक मदन ने किया है कि my child is 13 years old, should I talk to him about drugs openly? जी, अमित जी, इस पर मैं आपका अगेन एक एग्जांपल दूंगा कि एक बार मैं स्कूल गया और टीचर जो वहाँ के प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि शुड वी टॉक टू दीज चिल्ड्रन अबाउट इट, कहीं ये तो नहीं है कि हम उनको वो चीज़ बता रहे हैं जो उनको नहीं पता है। तो मैंने उन प्रिंसिपल साहब से कहा कि चलिए लेट्स टेस्ट इट। मैंने सारे टीचर्स को बाहर निकाला, प्रिंसिपल साहिबान को बाहर निकाला, उसके बाद बच्चों के साथ बात की कि जस्ट टू नो कि उन बच्चों को कितना इंफॉर्मेशन है इस बारे में। एंड टू माय सरप्राइज वो बच्चे हमसे ज़्यादा अपडेटेड थे कि किस तरह के ड्रग्स मार्केट में मिलते हैं। जिन माँ ने ये क्वेश्चन किया है उनके मैं डेफिनेटली कहूँगा, नंबर 1 वो पहले खुद को अपडेट करें, उसके बाद लेट हर स्टार्ट टॉकिंग विद हर चाइल्ड उस पर्सपेक्टिव में कि इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है एंड एम्फसाइजिंग मोर ऑन इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स, क्योंकि ये बच्चा हमारा जो ये 13 साल का बच्चा है उतना कॉन्शियस और उतना इंटेलिजेंट होता है कि उसके पास सारी एक्सेस है। इससे पहले कि वो किसी उस वेबसाइट पर जाए जो उसको बताए और जो उसको प्रमोट करे, सो दैट ही गेट्स अ टेम्पटेशन उसको यूज करने की या उसको ट्राई करने की, द बेटर विल बी कि एज अ पेरेंट हम वो लाइन क्रॉस करें एंड लेट्स टॉक टू आवर चाइल्ड सो दैट ही गेट्स द बोथ पर्सपेक्टिव्स ऑफ इट। श्योर। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल जो आया है वो है कि विच टीन्स आर मोर एट रिस्क फॉर एडिक्शन, क्योंकि हमने देखा है कि एक एज ग्रुप में एक सर्टेन सेक्शन है, एक दोस्त है जो एडिक्ट है, एक दोस्त जो एडिक्ट नहीं है, तो ऐसा इज इज अ स्पेसिफिक टीन सेक्शन जो प्रोन टू मोर एडिक्शन है? जी, सो उसमें मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। नंबर 1, वो टीन्स। आपका म्यूट हो गया डॉक्टर साहब, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में एक भी बच्चा है जो ड्रग अब्यूज कर रहा है, जो उसके ग्रुप के 4-5 बच्चे हैं, उनके अंदर वल्नरेबिलिटी ज्यादा है। 1 सेकंड, अगर आपके फैमिली रूल्स में थोड़ी सी लेग्जिटी है, कोई उसमें एक रेगुलरिटी नहीं है कि शाम को 5 बजे घर आना है, शाम को 8 बजे घर आना है, उसमें उन बच्चों में जिनको ये फैमिली रूल्स ज़्यादा प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, उनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। तीसरा हमने देखा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द पॉकेट मनी, रेगुलेशन ऑफ द पॉकेट मनी। क्योंकि मैं एक फिनोमेना यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा, जब भी बच्चों के अंदर, जब भी किसी के अंदर ड्रग डिपेंडेंस आ जाती है, उसके बाद एक और स्टेज आता है दैट इज कॉल्ड ड्रग टॉलरेंस। ड्रग टॉलरेंस क्या होता है कि जो बच्चा पहले से 1 ग्राम हेरोइन का नशा करता था, अब वो उस लेवल पर आ गया है कि 1 ग्राम हेरोइन का नशा करने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसको वो नशा, वो किक, वो प्लेजर नहीं मिलता है, तो वो वही किक उस डोजेज को बढ़ाने की वजह से उसका खर्चा ज्यादा आ जाता है। 1 ग्राम हेरोइन आजकल 2500 रुपए में मिल जाता है। अब जो बच्चा 2 ग्राम पर पहुंच गया, उसको वही प्लेजर लेने के लिए 2 ग्राम करना पड़ता है, तो उसका खर्चा 5000 दिन का हो गया, महीने का ये 1.5 लाख हो गया। तो अल्टीमेटली चोरियां जब बंद हो जाती है, कर्जे भी इसने लिए हैं, माँ बाप के घर का वैल्यूएबल्स उसने बेचा है, लेकिन अल्टीमेटली वो ड्रग पेडलर बन जाता है, ही इज पुश टुवर्ड्स ड्रग पेडलिंग। और उसका शिकार कौन सा बच्चा होता है? जिसकी पास सबसे ज्यादा पॉकेट मनी हो। अब अगर हमारे कॉलेज में, मेरे स्कूल में 10 बच्चे कैंटीन में खा रहे हैं,
सब बच्चों को 50-50 रुपए और उनको 50 रुपए को हिसाब देना है शाम को माँ को कि मैंने 50 रुपए किससे से खर्च किए। लेकिन उसके अंदर एक और बच्चा है जिसको मम्मी पापा ने एटीएम कार्ड ही दे रखा है। ये एटीएम कार्ड वल्नरेबल है अपने पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं, मेरे इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि मैं इसके ग्रुप में एक ड्रग एडिक्ट बच्चा हूं और मेरी नज़र इस पर है कि मैं किस तरह से इसको अपने अंदर ले आऊंगा। तीसरा हमने देखा कि वो बच्चे, वो टीन्स जिनका हम देख रहे हैं कि पर्सनल स्ट्रगल्स है, जैसे अगेन जो मैं बोल रहा था पर्सनल इवेंट्स, चाहे कोई रिलेशनशिप फेलियर हो, या हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी वो बच्चे जिनका सेल्फ एस्टीम बहुत कम होता है, वो लोग किसी भी ग्रुप में फिट होने के लिए वो दैट्स कॉल्ड द ग्रुप कन्फर्मिटी, उसकी एक टेंडेंसी है कि नहीं मैं इस ग्रुप में एडजस्ट हो जाऊं ताकि उन जैसा बनूं। और उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है कि उनको उनके साथ सिगरेट पीनी पड़ती है, उनको उसके साथ दारू पीना पड़ता है। वो ग्रुप कन्फर्मिटी भी उस टीन को वल्नरेबल बना देता है। डॉक्टर साहब एक और सवाल है, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट एज ऑफ एजुकेटिंग द चिल्ड्रन अबाउट द सेम? जिनका सिंगल पेरेंट हो या जिनका इंस्टीट्यूशनल अपब्रिंगिंग हुआ हो, उनके अंदर भी वल्नरेबिलिटी ज्यादा है देन अदर चिल्ड्रन। थैंक यू। डॉक्टर साहब, तो आपको क्या लगता है कि किस उम्र के बच्चे से ये बात करनी शुरू कर देनी चाहिए? ये व्हाट इज द टू मी राइट एज? टू मी 8th क्लास के बच्चे से हमें बात शुरू करनी चाहिए। ये I think you have answered this question. Why do some people become addicted while others don't? अब ये जी इस सवाल का ये भी है कि there are certain types of people, वो कई बार जैसे आपने कहा experimental drugs कर लेते हैं जी कि I have done types, जी मतलब मैंने ये किया है, और we realize कि some children get addicted and some don't. कई एक बार करके दोबारा नहीं करते हैं, but most of them get addicted again. So is there any medical reason for the same, or is it social values that makes it different? Hello. Dr. Saab, we can't hear you. Are you there? Hello. Dr. Saab? I think we have lost him because of some signal. Okay, let me call him and Viewers, just hold on. I think we have lost him because of some connection issues. And do share your questions. आपके पास जो भी सवाल हो, कुछ हो जो डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं, so that we can take it up. we will wait for another 30 seconds. I'm sorry, there seems to be some technical error. We're not able to get in touch with Dr. Saab. But मैं आपसे जो सवाल आपके आए हैं मैं ज़रूर उनसे शेयर करूंगा, उनसे प्रयास करूंगा कि एक वीडियो ले उनसे, या उनसे और आपसे वापस इसको शेयर कर सकें, इसको अपलोड कर सकें। कुछ क्षणों के लिए हम वेट कर लेते हैं डॉक्टर साहब का, अदरवाइज वी विल हैव टू एंड दिस मीटिंग।
I don't think we've been able to get in touch with Dr. Saab. I'll try to make a call. So we are not going to. No, he is coming back. I can see him coming back. Okay. हेलो Yes, sir, Dr. Saab, welcome. पंकज जी, आई एम सॉरी, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी. कोई बात नहीं. Not a problem. The reason, the question we had was कि जो मैं आपसे पूछ रहा था कि is there a certain medical reason or psychological reason कि certain children get addicted and certain don't, even if both experiment only once? Okay, yes. हमने ये देखा कि लाइक जो लाइफ इवेंट्स को फेस कर रहे हैं, समटाइम्स कोई बच्चा जो है जिनको साइकोलॉजिकली, जिनको हम बोल रहे हैं, उनको परफॉर्मेंस एंजाइटी बहुत रहती है. कहीं उनको परफॉर्म करना है, एग्जाम में जाना है, वो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. जिनको एंजाइटी फीचर्स काफ़ी प्रिडोमिनेंट रहते हैं, उनको वो लोग जब कभी एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को ले लेते हैं, उनको अपनी उस एंजाइटी उससे कम लगती है. उनको लग रहा है कि इससे मेरी एंजाइटी कम हो गई है, जिसकी वजह से उनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है. सेकंड, जो लोग अगेन पर्सनल लाइफ को लेकर स्ट्रगल में जा रहे होंगे, उनको कई बार लग रहा है कि जैसे उन्होंने सब्सटेंस ले लिया, उनकी जो वो पर्सनल स्ट्रगल है, पर्सनल डिस्ट्रेस है, उसमें कमी आ जाती है. थर्ड, कुछ लोग हैं जिनको हम ओसीडी का डायग्नोसिस बना लेते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, जिसमें उनको लग रहा है कि हर चीज़ गंदा है और गंदे के बाद वो बार बार वॉशिंग कर लेते हैं, या चेकिंग का बिहेवियर बहुत ज़्यादा हो जाता है. और अगर वो लोग भी गलती से अनइंटेंशनली कभी वो उस फ्रेंडशिप में, उस सर्कल में घुस गए जहां पर उन्होंने किसी नशे का इस्तेमाल किया, उनको लग रहा है कि वो जो उनको ओसीडी की वजह से डिस्ट्रेस रहता था वो कम हो गया, एंड वो लोग फिर नहीं छोड़ पाते. वो बोलते हैं नहीं, इससे मुझे आराम आ गया, लेट मी कंटिन्यू विद इट. तो दे बिकम वल्नरेबल फॉर इट. एक और सवाल है डॉक्टर साहब, डज marijuana लीड टू यूज ऑफ अदर ड्रग्स? मतलब is there a gradual progression from what we call narcotics or non-synthetic drugs to synthetic drugs? Yes, I have practically seen it. I would say abusing marijuana or abusing simple nicotine, जो हम सिगरेट पी लेते हैं, it is a gateway to all other drugs. क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब उनके अंदर एक टॉलरेंस का स्टेज आ जाता है कि अब वो बोल रहे हैं कि यार मैं कितना भी marijuana पीऊँ कुछ हो नहीं रहा है, then they cross over to some other stuff, again because of the peer influence or because of their own knowledge updation or because of their own beliefs, they cross over to some other harder drugs and it leads to it. Yes. पंकज जी, डॉक्टर साहब, आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगा. It was a good insight. we have more questions coming. मेरे को क्वेश्चन सवाल आ रहा है जो एक्चुअली वाज रिलेटेड टू योर कैटेगराइजेशन ऑफ द पीपल, ग्रुप 1, 2 एंड 3. तो एक ग्रुप की डिस्कशन अभी हो रहा है जिसमें प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि द पेशेंट हु वाज ऑन द ड्रग्स then gets actually habitual to that drug. Yeah. So how to restrict that? How to control that? से हमें जो जैसे मैंने इसके स्टेजेस बताए, we have to, as a parent, as a teacher, we have to get involved and come to the level कि क्या हमारा ये बच्चा है, ये किस स्टेज में, क्या ये यूज कर रहा है, ये मिसयूज कर रहा है, ये अब्यूज कर रहा है, या इसकी डिपेंडेंस हुई है. जैसे पंकज जी जो आप बात बता रहे, इट लुक्स लाइक कि वो इसको डिपेंडेंस आई है उस पर. देन वी हैव टू सी, हाँ, देन वी हैव टू सी कि उस ड्रग का नेचर क्या है. बिकॉज अगर वो सिर्फ कैनबिस का डिपेंडेंस हुआ है, वी एक्सपेक्ट कि उसको क्या क्या होगा. अगर वो हेरोइन का डिपेंडेंट हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट मॉडलिटी अलग बन जाएगी. अगर वो अल्कोहल का डिपेंडेंट हुआ है, उसकी ट्रीटमेंट अलग मॉडलिटी होगी. अगर वो स्लीपिंग पिल्स का डिपेंडेंट है, उसकी ट्रीटमेंट की मॉडलिटी अलग होगी. और कई बार अक्सर हम लोग रिहैब फैसिलिटी में जब पहुंच जाते हैं, उस वक्त एक ड्रग वो नहीं ले रहा होता है, he or she is abusing more than 2 drugs.
तो हम लोग उनको लेबल करते हैं मल्टीपल ड्रग अब्यूज। अगर उस तरह का नैयत है तो उस बच्चे को मैं कहूँगा, उस पेरेंट को मैं कहूँगा कि वहाँ पर हमारी सिंपल काउंसलिंग काम नहीं करती है, हमें उनको हॉस्पिटल या रिहैब फैसिलिटी तक लाना ज़रूरी बनता है। डॉक्टर साहब एक और सवाल है, हाउ ये माय टीनेजर children have begun drinking at parties, how do I prevent them from joining it? अमित जी, आप फिर से बताएंगे ये सवाल? सवाल ये है कि my son has started drinking at parties, teenager son, how do I prevent him from joining it? ओके, सी ड्रिंकिंग का भी एक सोशल ड्रिंकिंग की हम बात करते हैं, एक बिंज ड्रिंकिंग की बात करते हैं, और एक उस ड्रिंकिंग की बात करें विच बिकम्स अनकंट्रोलेबल। जैसे अभी ये शुरुआत है, वी वुड से कि दिस ही इज ट्राइंग टू गो इनटू दैट सोशल ड्रिंकिंग। आई थिंक एज ए पेरेंट मैं उसके साथ बात करूं, इन्वॉल्व हो जाऊं और उसके साथ उसको वो पूरा कोर्स दिखा दूं कि हमें ड्रिंकिंग कहाँ तक सोशल ड्रिंकिंग है और कहाँ कौन सी वो लिमिट है। जब वो क्रॉस हो जाती है देन वी से कि नाउ दिस पर्सन हैज डेवलप्ड दैट डिपेंडेंस एंड इट इज नॉट पर से दैट सोशल ड्रिंकिंग। So there is a vulnerability that he might shift to that dependence pattern. So what we can do in a very comfortable way, in a very regular way, we can sit with that boy, we can talk to him, and at the same time मैं खुद मॉडलिंग करूं। अगर मैं खुद डिपेंडेंस पर हूं, बिकॉज द पेरेंटल डिपेंडेंस अगर किसी ड्रग पर है वो बच्चों की वल्नरेबिलिटी को बढ़ा देता है, जेनेटिकली भी एंड सोशली भी। या तो एक सवाल इसमें उठ के आता है कि हाउ डिफरेंट इज अल्कोहल फ्रॉम ड्रग्स? अल्कोहल इज नो डिफरेंट फ्रॉम द ड्रग्स एक्सेप्ट इन इट्स क्लासिफिकेशन, जो किताबों में क्लासिफिकेशन रखी है कि अल्कोहल एंड अदर ड्रग अब्यूज। yes, alcohol has the same effect, but yes, if you ask me, अगर अल्कोहल को एक कंट्रोल्ड वे में लिया जाएगा, एक सोशल ड्रिंकिंग के उसमें लिया जाएगा, तो उतने ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है। अल्कोहल का जब डिपेंडेंस आ जाता है, इट अगेन बिकम्स एज वर्स्ट एज अदर काइंड ऑफ ड्रग्स। I think so एक और सवाल इस पे उठ के आता है, so is there is a dependency exactly, so how quickly that dependency level is gained actually on alcohol or drugs? So that's the सवाल। एक सवाल ऐसा है कि how does it progress into addiction or dependence? addiction on dependency। अगर आप ओवरऑल इन सब में एक चीज देखें, इट इज दिस डिपेंडेंस लेवल जो प्रॉब्लमेटिक है। और अगर हम इनको कंपैरिजन करेंगे, हीरोइन का डिपेंडेंस बहुत फास्ट आ जाता है देन द अल्कोहल। So I think synthetic and narcotics are much more addictive, as we can say. Much more addictive, yes, much more addictive। और जो वो टाइम गैप है, जैसे अल्कोहल, जैसे वो he will go in a social drinking that it will take him years to reach to that dependent stage, but if he is into the harder drugs, narcotics, synthetics, there is a chance that he might shift within weeks. Yeah. Any other question, Pankaj ji? Yeah, I have one more question. The question is like that: how does a parent or a teacher know if someone is addicted at the initial stage? Yeah, first is, at the very beginning stage. Yeah, very beginning stage is change in the behavior. See, monitor the child and see the change in the behaviors. और ऐसा नहीं है कि ये behavioral change होगा तो ये drug है। We have to see overall change in the behaviors. Then we have to apply our investigate mind. Then we have to apply our mind कि ये behavioral change because of his age change है, और ये behavioral change unexplainable है। Say for example, I will tell you two things. अक्सर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बच्चा, जो हमारे यहाँ पर कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ, द फर्स्ट सिग्नल जो पेरेंट्स ने इग्नोर किया है कि ये बच्चा हमें अलाउ नहीं करता है अपने कमरे में आने के लिए। देयर कैन बी सिंपल टू रीजंस। या तो ये टीनेज में शिफ्ट हो रहा है कि इसको किसी लड़की से बात करना है तो इसलिए नहीं आने दे रहा है, और द सेकंड रीजन कैन बी कि इसके कमरे में कुछ ऐसा स्टफ रखा है जो ये नहीं चाहता है पेरेंट्स को पता चल जाए। Now, as a vigilant parent, I have to get involved. मैं confidential way में अपनी उस level पर आ जाऊं and I can figure it out.
एज अ पेरेंट मैं भी उसका उस्ताद हूं, मुझे पता चल जाता है कि ये कहां पर क्या हो रहा है. और if it is going in a drug abuse way, we have to be really careful, we have to take measures. If it is going through the other way, again we can sit with the child and see कि कोई ऐसा untoward ना हो जाए. Then second we see कुछ indicators है, जैसे for example weight loss, for example sleep disturbances, for example valuables जो बच्चों का होता है, जैसे आज इसने मोबाइल लिया, इसकी जो एक्सप्लेनेशन मोबाइल कहाँ गया वो मैंने दोस्त को दे दिया. हर बार वो मोबाइल लेगा, हर बार को दोस्त देगा. एक बार उसने चलो वंस अपॉन अ टाइम उसने अपने दोस्त को गिफ्ट किया, इट्स ओके, लेकिन हर बार उस तरह की एक्सप्लेनेशन हो जाती है, दैट्स एन इनअप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन. थर्ड इज टाइम फैक्टर. टाइम फैक्टर मीन्स अगर वो स्कूल से 4 बजे छूटता है, वही 9, 4:30, 5 तक उसको घर आना है, बट वी आर सीइंग एन इनअप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन कि इसमें डिले क्यों हो जाता है. Again, as a parent, we have to be vigilant on that. Then second is increased demand for the money. Then we are seeing some change in the pattern of eating behaviors. यहाँ में अक्सर कई बच्चे मैंने सिर्फ इस चेंज इन द ईटिंग पैटर्न पर डायग्नोज किए कि वो ड्रग अब्यूज कर सकते हैं. से फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में एक माँ मेरे पास आई कि मेरा बच्चा कभी भी मीठा नहीं खाता था, लेकिन आज के टाइम में ये इतना ज़्यादा मीठा खाता है कि हमारे घर में सारी शुगर ख़त्म हो जाती है. सो आई कुड सस्पेक्ट इट दैट देयर माइट बी एन ओपियोइड यूज, बिकॉज जितने भी बच्चे ओपियोइड अब्यूज कर लेते हैं वो उनके अंदर एक मिथ है कि जब भी वो ओपियोइड अब्यूज के साथ मीठा खाएंगे तो उसका स्टिमुलेशन बढ़ जाता है, उसका किक वैल्यू बढ़ जाता है, एंड दैट कैन बी टेकन एज अ इंडिकेटर. Then we see कि these children जो ये हीरोइन का अब्यूज कर लेते हैं, इनके अगर आप इस अंगूठे को देखोगे, just touch their thumb, you will see कि इस thumb में unusual roughness है than all other fingers. And you can make it as a parent कि ऐसा क्यों हो रहा है. और those जो इंजेक्टेबल्स पर जाते हैं, just take their उनका स्लीव्स थोड़ा सा ऊपर करके अपने बच्चे का किसी भी तरीके से without compromising his confidence, क्या उसका हम देखेंगे कहीं इंजेक्टेबल मार्क्स तो नहीं है इन सब पर. और जो ये इनहेलर्स है, उन पेरेंट्स के लिए मैं एक मैसेज देना चाहूंगा जो ये इनहेलर्स का अब्यूज करते हैं, से फॉर एग्जांपल करेक्शन फ्लूइड का अब्यूज करेंगे या फेविकोल एसआर का अब्यूज करेंगे. वी आर सीइंग जैसे ये अब्यूज करके इवन समटाइम्स ये लोग अपने कॉलेज कैंटीन के वॉशरूम्स में अब्यूज करके क्लास में आ जाते हैं, बट इनमें उसमें उनके आंखों में रेडनेस आ जाती है. In order to mask that redness, इन लोगों ने पहले से ही आईकूल जेब में रखा होता है. सो अगर आपके बच्चे में उस तरह का मेडिसिन मिल जाता है जो किसी डॉक्टर ने नहीं प्रिस्क्राइब किया है, जो फैमिली ने उसको नहीं रिकमेंड किया है, वी हैव टू बी इनक्विजिटिव कि भाई ये आया क्यों और इसकी क्या वजूहात है. देन वी आर सीइंग कि कुछ बच्चे स्पेसिफिक टाइम में उनके अंदर बहुत एब्सेंट माइंडेडनेस आ जाती है. बात हम कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं लेकिन रजिस्टर नहीं कर पाते. तो दीज आर द इंडिकेटर्स कि जिससे हम लोग एक उस शक के दायरे में आ सकते हैं कि नो, एज अ पेरेंट दिस आई हैव टू लीव माय कंफर्ट जोन, ताकि मैं थोड़ा बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो जाऊं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही. जी, I think we have the last question for the day, Dr. Saab. ये है, how can child avoid peer influence, especially with people whom he has to interact on day-to-day basis? yes. This is a really very important and challenging task. आप स्कूल जा रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि मैं स्कूल जाऊंगा और मैं किसी से बात नहीं करूंगा, बट एज अ पेरेंट मैं, बिकॉज चाइल्ड की जो एज होती है, he is not able to see different colors of life, he is not able to see different perspectives of life. Again I would say कि वहां पर अगर पेरेंट उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, वो उसको एक वो इंसाइट दे सकता है कि आपके 4 दोस्त हैं, लेट्स एनालाइज योर 4 फ्रेंड्स डिफरेंटली. आपका एक फ्रेंड बहुत कोई भी नशा नहीं करता है, आपका दूसरा फ्रेंड ये स्मोकिंग बिहेवियर इसमें टेंडेंसी हुआ है, आपका तीसरा फ्रेंड उसके अंदर ओकेजनल अल्कोहल इनटेक है. देन वी कैन टॉक टू आवर चाइल्ड एंड गिव हिम एन इनसाइट कि दिस एंड देयर इज अ वल्नरेबिलिटी कि आप में ये सब चीजें आ सकती है. देन वी कैन आइडेंटिफाई, देयर इज अ वन कंडीशन वी high risk situations is
अगर हमारा बच्चा पिकनिक पर उन बच्चों के साथ गया और रात को स्टे किया और अगर वो बच्चे अल्कोहल ले रहे हैं, इट इज ऑलमोस्ट श्योर कि मेरे बच्चे के अंदर चांसेस ऑफ टेकिंग अल्कोहल ऑन दैट नाइट आर मोर. एज अ पेरेंट अगर मैंने आइडेंटिफाई की है कि दिस कैन बी द हाई रिस्क, बिकॉज ये इन दोस्तों को ये अवॉइड नहीं कर सकता है स्कूल में, लेकिन इन दोस्तों को हम अवॉइड कर सकते हैं कि इनके साथ हम पिकनिक नहीं जाएंगे. तो आई थिंक दीज आर द स्मॉल स्टेप्स, स्मॉल मेजर्स, जिनको अगर हमें एक इंसाइट मिल जाएगा, वी कैन डू अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस वी कैन हैव. जी. Thank you, Dr. Saab. Thank you very much for such a wonderful session. It was really pleasure having you. I hope this program will be seen by many more parents, as we rightly believed and suspected that parents tend to believe कि मेरा बच्चा भगवान है और बाकी शायद शैतान है. Somewhere they will have to realize that yes, बच्चा भगवान है, but he still needs your guidance. He still needs the care, and you still need to instill right values in him, and you need to keep eye on him, because एक एज ही ऐसी है कि जिसमें कदम भटकने में समय नहीं लगता है और उसमें शायद बच्चे की गलती ना भी हो. तो ज्यादातर गलती आप ही की होती है. अगर आप उसको मैनेज नहीं करेंगे तो ये आपकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. थैंक यू वेरी मच. Thank you viewers for being part of this initiative. Next week we will have Dr. Nayak, Yagnesh Nayak, speaking about COVID prevention and cure during COVID-19. Dr. Yagnesh Nayak is a nodal officer in Gujarat on COVID-19. That's the topic. Next week, same time, 11:30 a.m. next Sunday, we'll be there. Thank you, Dr. Saab. Thank you very much for being there.